श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्य जगत जननी बरमा की श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। योगाचार्य पूज्यपाद आचार्य देव वर्धा की श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी को मेरा जय गुरु। मातृ सम्मेलन में आप सभी को स्वागत है। अभी गुरु वंदना के लिए मैं मेरी बेटी वृत्ति दीपा चक्रवर्ती को आमंत्रण करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य गणेन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सागरं जंगम व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चित्रपेन परिव्याप्तं त्रिलोकं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुराधिकं तत्तं न गुरुराधिकं तपो तत्त्वज्ञानत्परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्ना श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा शब्दात्मा तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरु ब्रह्मानंद आप सभी को मेरा जय गुरु। अभी सप्तम शरण पाठ करेंगे नीला माँ। परम दयाल श्री श्री ठाकुर অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্য অনুসরণ থেকে পাঠ করছি। অর্থ মান যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হইও না। সাবধান হও, ঠকবে। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। অনুতাপ করো, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন। আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে। আর তাহলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। জয় গুরু। हाँ जुथमा सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। आप पाठ कीजिए। हिंदी में नारी नीति से अनुवाद। तुम्हारी सेवा तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नतजानु हो, ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो, तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। नारी का वैशिष्ट, नारियों के वैशिष्ट में है निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन। तुम अपने इन वैशिष्ट्यों में किसी एक का भी त्याग न करो। इसे खोने पर तुम लोगों का और बचा ही क्या। जय गुरु। जय गुरु ज्योतिमा, थैंक यू। अभी पूजनीय साधनादि रचित प्रार्थना पाठ करेंगे। जबा माँ। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुरेर ज्येष्ठा कन्या साधना দিয়ে রচিত আমি প্রার্থনা শুরু করছি। আমার ইষ্ট, আমার আদর্শ, আজ থেকে আমার জীবন তোমার, তোমার বৃদ্ধি আমার বৃদ্ধিকে স্পর্শ করুক। তোমাকে প্রতিষ্ঠা করাই আমার জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত হোক।
নারী নীতিতে তুমি বলেছো তুমি কল্যাণী রূপে, সতী রূপে, নারী রূপে আমাকে আমার বৈশিষ্ট্যে বর্ধনশীলা দেখতে চাও। শপথ করছি আমার জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি তোমার এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। তুমি সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হও। আমার জীবন আমি তোমায় অর্ঘ্য দিলাম। তুমি উচ্ছল হয়ে ওঠো পুলকে, জীবনে, যশে আর মহান সম্বেগে। নারী আমি অমৃতের অধিকারিণী। আশীর্বাদ করো যেন এই অফুরন্ত অমৃত দিয়ে নিপীড়িত, ব্যথিত, পরিনিষ্ট, আদর্শ অনুপ্রাণ নরকে আমি অপূর্ব প্রাণন স্নানে স্নাত করিয়ে তোমার দিকে তাকে আরো এগিয়ে দিতে পারি। তুমি আমাকে ভালোবাসবার অধিকারিণী করেছো। আমি আমার সব ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে তোমাকে সতেজ দীপ্ত জীবনময় দেখতে চাই। তুমি এই শুভক্ষণে আশীর্বাদ করো যেন আমি এমনি ভাবে আমার চলায় তোমাকে, তোমার ইচ্ছাকে মূর্ত করে তোমার মহান অভিযানকে অবাধ করে তুলতে পারি। আমার অস্থিবৃদ্ধির পরম উদ্ধাতা, আমার প্রিয় পরম, জন্ম জন্মান্তরের বহু তপস্যার ফলে তোমাকে পেয়েছি আমরা আমাদের এই জীবনে। সার্থক হয়েছে আমাদের জন্ম, ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি তোমার চরণ স্পর্শ করে। যুগের পর যুগ তপস্যা করেও দেবতারা যাকে মূর্ত করে তুলতে পারেননি, কত পুণ্য ফলে সেই তোমাকে করেছি মূর্ত। অরূপ ভগবানকে করেছি মানুষ ভগবান। দয়াল, কত ভাগ্য আমাদের। প্রিয়তম, আজ এই শুভক্ষণে তোমার চরণে শুধু এই প্রার্থনা আমাদের, তুমি দীর্ঘায়ু হও, সুস্থ হও, সুখী হও, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আর দাও আমাদের সেই প্রেরণা যা আমাদের সক্ষম করে তুলবে বাঁচা পারার অপূর্ব সৌরভ ছড়াতে ছড়াতে সব পারিপার্শ্বিক আমাদিগকে তোমার জীবন বৃদ্ধির অনুকূল করে গড়ে তুলতে। ওগো দরদি বন্ধু, আমার সর্বস্ব, তুমি আমার জীবন। আমি জানি তোমার মতো বন্ধু, তোমার মতো প্রিয় আমার আর কেউ নেই। তোমার প্রতি কর্মে, প্রতি ভঙ্গিতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। আশীর্বাদ করো দয়াল, আমি যেন মুহূর্তের জন্য ভুলি না তুমি আমার প্রেষ্ঠ, তুমি আমার অনুকূল, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ। তাই প্রার্থনা দাসীর, তোমার জীবন চিরবর্ধনে বর্ধিত হয়ে উঠুক। তোমার বৃদ্ধি আমার বৃদ্ধিকে স্পর্শ করুক। আমার নারীত্ব ধন্য হোক, সার্থক হোক তোমার নারীর নীতি প্রতিপালনে। ওগো প্রিয় রাজাধিরাজ সম্রাট, তুমি থাকো, তুমি বাঁচো, আমাদের জীবন চলনার প্রতি পদক্ষেপে ধ্বনিত হয়ে উঠুক স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু। जय गुरु माँ, जय गुरु। আপনাকে बहुत धन्यवाद। अभी पांचाली गीत पाठ करेंगे मिठू माँ। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ মিঠুদি, একদম শোনা যাচ্ছে, আপনি শুরু করুন। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরমারাধ্য যুগাচার্যদেব শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। ঠাকুর পরিবারের সকলের শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। উপস্থিত মায়েদের আমার আনন্দিত জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঁচালী গীত পাঠ করে শোনাচ্ছি।
তোরা শোন রে ভাই, তোরা শোন রে ভাই, বলে যায় বাঁচা বাড়ার পথ, যে পথে চলেছে ঠাকুর অনুকূলের রথ। শোনো পুণ্য কথা, শোনো পুণ্য কথা, তার বারতা কই বিবরণ, যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ, মহাপুরুষ অনুকূল রায়, পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায়। গ্রাম হিমায়তপুরে, গ্রাম হিমায়তপুরে, পদ্মা তীরে, জেলা পাবনায়, শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয়, মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী, তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী, যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের পতি, করে গৃহ আলো, করে গৃহ আলো, প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল, যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য তার রূপ দেখে, তার রূপ দেখে, ভাব দেখে কখনো না যায়, ভুবন মোহন রূপে সবার ভুলায়। শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা, মাধুরিমা নাহি পারাবার, নর রূপে এলো সে যে দেব অবতার। শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা, তার বারতা অতি চমৎকার, বাঁচা বাড়ায় সার, করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার, সদাচার ঋষি বাক্য পালো, প্রতিবেশীর সেবা করে ইষ্ট পথে চলো। এই তো আর্য নীতি, এই তো আর্য নীতি, ধর্মনীতি, হিংসা দেশ ছাড়ো, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো। পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম, করো প্রেম ইষ্ট করো, যজন যাজন ইষ্টভৃতি যথাবিধি পালো। পালো সস্তয়নী, পালো সস্তয়নী, মহান বাণী পালন করো ভাই, ত্রিজগতে নামের সম ঔষধ আর নাই। এ তো বাঁচার পথ, এ তো বাঁচার পথ, ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই, বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই, গড় আর্য সমাজ, গড় আর্য সমাজ, বাড়াও ধাজ আর্য কৃষ্টি রাখো, বুদ্ধ ঈশায় রসুল কৃষ্ণে সমান চোখে দেখো। তারাই পূর্বতন, তারাই পূর্বতন, বর্তমান ঠাকুর অনুকূল, তার বিধি মেনে চলো, কাটাও মনের ভুল, পাবে মহাশান্তি, পাবে মহাশান্তি, যাবে ভ্রান্তি, পাবে সত্য যুগ, কালো বাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোগ। ভাইরে ভয় নাই, ভাইরে ভয় নাই, টানো ভাই অনুকূলের রথ, ধর্ম নষ্ট নাহি হবে, পাবে বাঁচার পথ। এই সৎসঙ্গে, এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করো বিহার, অধম সন্তান ভজে পদ যুগল তার। জয় পুরুষোত্তম, জয় পুরুষোত্তম, রসুল নাম বুদ্ধ যিশু নাম, শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘন শ্যাম। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। जय गुरु मिठू दी, आपको बहुत सारा धन्यवाद। अभी मैं संध्या कर्मकार माँ को अनुरोध कर रही हूँ स्वास्थ्य और सदाचार से पाठ करने के लिए। स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र।
জীবনের জ্যোতি ধর্মে করিয়া পালন, অর্জিত আয়ুর সবে হও অধিকারী, বৃহস্পতি পরিচালী, সৃষ্টির মার্জিত গতি, সার্থক গতিতে তুমি হও সমাসী। রোগে পড়ে আরোগ্য হওয়ার চাইতে প্রতিষেধ ঢের ভালো, অর্থাৎ রোগ যাতে না হয় তাই করা ভালো। তা শুধু রোগে নয়, অকল্যাণ করো যা কিছু তার বেলাতেও। জয় গুরু মা, শান্তি जय শান্তি। जय गुरु संध्या माँ, जय गुरु। आपको बहुत सारा धन्यवाद। अभी मैं हमारी नजदीक का जो मंदिर है भिलाई मंदिर, उनकी एक कर्मी है, उनकी नाम है वज्रदीपन दासगुप्त। उनकी पूरी फैमिली की कोरोना हुआ है और वज्रदीपन दा और उसकी पिताजी दोनों ही हॉस्पिटलाइज्ड है और उनकी वाइफ बेटी दोनों घर पे है पर कोरोना हुआ है। तो हम सब अभी 2 मिनट उनकी फैमिली की शुभकामना के लिए नाम ध्यान करेंगे भगवान के पास। जय गुरु सबको। अभी मैं सुजाता माँ को आमंत्रित करती हूँ संगीत परिवेशन करने के लिए। ऑनलाइन उपस्थित सभी को मेरी तरफ से आनंदित जय गुरु। पुरुषोत्तम प्राण बल्लभ बिहार हृदय মাঝে সকল কারবে সকল সাধনে
আমার বিরাজহি ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ তোমার অসীম বিপুল প্রকাশে চিত্ত যেন নিয়ত বিকাশে চেতনায় যেন নিয়ত ঘাসে তব মহিমা সকল কাজে ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ তুমি না রাখিলে কোথা যায় স্বামী রাতুল চারণে পড়ে আছি আমি তুমি না রাখিলে কোথা যায় স্বামী রাতুল চারণে পড়ে আছি আমি ওগো সুন্দর কোন বলিয়া চাহিব তোমারে রাজমন্দিরা ওগো সুন্দর কোন বলিয়া চাহিব তোমারে রাজমন্দিরা আলোকিত করি অন্তর আমার নিরত তুমি রাজহে ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ বিহার হৃদয় মাঝে সকল কর্মে সকল সাধনে চিত্তে আমার বিরাজহে ওগো পুরুষোত্তম প্রাণ বল্লভ জয় গুরু जय गुरु सुजाता माँ, आपकी इतना सुंदर भाव से और आपकी जो ठाकुर जी की जो सिंहासन वही देख रही थी मैं, इतना सुंदर। हम लोग जो मन से पूजा करते हैं उन लोगों के मन में हर वक्त रहता है कि मेरी सिंहासन सबसे ज्यादा सुंदर हो, पर मेरे को लगता है मेरी सिंहासन आपकी सिंहासन से ज्यादा सुंदर नहीं है। और गाना एक जोग होता है, आप उनकी अधिकारी हो जन्मगत से। ठाकुर जी की चरण में मेरी ये प्रार्थना है, आपकी और आपकी जो परिवार
वो सुख और शांति से जीवन को लेके चले। जय गुरु माँ को। मैं अभी आप सभी को एक विशेष माँ की तरफ लेके जा रही हूँ। उस माँ की नाम है इंदिरा शाह माँ। माँ मुंबई में माँ को मैं पहली बार मुंबई में एक मातृ सम्मेलन परिचालना करते हुए देखा था। तब से मैं पता नहीं, मेरे को लगते थे मैं भी ऐसी मातृ सम्मेलन कर सकती हूँ क्या। आज मेरे हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए कभी कभी बंगाली भी आ जाता है, आप लोग मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। आज मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मन इतना खुश है। आज मेरे इधर 2 जना आलोचना करेंगे। 2 ही जना बहुत बड़े हैं मेरी आंखों से। बहुत स्ट्रगल करके मैं जब पहली बार देवघर में गई थी, बहुत सारे लोग हैं जो जाके आचार्य देव बाबा को बोल रहे थे, मैं आचार्य देव को बाबा बोलती हूँ, बाबा को बोल रहे थे कि ये लड़की बहुत अच्छा गाना गाता है, बाबा ये लड़की बहुत अच्छे ये करता है। बाबा उनको देखते थे और मेरे को देखते थे। मैंने तो कुछ नहीं बोला, वो लोग जाके बोलते थे। और बाबा मेरे को ऐसे करके सब लोगों से गार्ड करके मेरे को ऐसे एक आंख से एक ऐसे निर्देश देते थे कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमको और कोई नहीं चाहिए। ऐसे ही मैं जब इस दीदी की बात सुनी, तब भी मेरे को लगा मेरे साथ जो हुआ था बहुत साल बाद, बहुत साल पहले इंदिरा दीदी को भी बाबा ऐसे करके अपनाया था। इंदिरा दीदी, आप प्लीज आपकी जीवन की सारे बात बताइए जो हम लोगों को बहुत सुनने का इच्छा है। जय गुरु। जय गुरु। मैं उपस्थित ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में सभी माओं को, छोटे छोटे बच्चों को, बहनों को, सबका मेरा हृदय भरा जय गुरु देते हुए मैं शुरू करती हूँ। मैं कोई विशेष तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब मुझे महसूस होता है, जब मुझे याद आता है, जब मेरा कानों में आचार्य देव का बातें गूंजता है, तब जरूर लगता है हाँ, आई एम प्रिविलेज्ड, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बहुत ही कच्ची उम्र में, जिस उम्र में आजकल का बच्चे, चाहे लड़का बोलो चाहे लड़की बोलो, बह जाते हैं, उसी उम्र से ही आचार्य देव ने मुझे ऐसे संभाला कि ही हैज चेंज्ड माय लाइफ बाय 360 डिग्री। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। थोड़ा पीछे जाके मैं ये बताना चाहती हूँ, ये तो भारतवर्ष है, मुनि ऋषियों का देश है। इसमें तो श्री राम, श्री कृष्ण, राम कृष्ण, यशु, अल्लाह, रसूल सभी आए, और सभी का घरों में जो मंदिर होता है उसमें देव देवी तो है ही। तो मेरा मिस्टर जब दीक्षा देने को जाते हैं तो नेचुरली जब बोलते हैं दीक्षा लाने को बाद, तो कोई बोलते हैं माता पिता ही तो हमारा गुरु। तब जब कोई लड़का सिगरेट पीता है, तब जब उनका माँ को पूछा जाता है आपका लड़का सिगरेट पीता है तो आप मना नहीं करते, तो माँ बोलती है हाँ मैं तो मना करती हूँ, लेकिन सुनता किधर है। तो इसका मतलब क्या है, जो लड़का सिगरेट पी रहा है उसका माता पिता है, उसका गुरु, पहला गुरु, लेकिन किधर पहला गुरु का बात सुन किधर रहा है। क्योंकि प्यार से ये जो दोनों का बीच में जो रिश्ता है प्यार का नहीं बना, इसीलिए माँ जब बोलते हैं बेटा ये गलत है मत करो, तो सुनता नहीं है। लेकिन जब ये जो रिश्ता है प्यार में जब बदल जाते हैं, जो ठाकुर जी ने जो प्रेम का अस्त्र लेके हमारा धराधाम में अवतीर्ण हुए थे, वही प्रेम जब स्टैब्लिश्ड हो जाते तो सुनता है। आजकल घर घर में ही ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो आचार्य को पकड़ के चलते हैं, जो पूजनीय बाबाईदा का साथ जिनका बहुत ट्यूनिंग है, जो छोटा सा नन्हे सा जो नारू गोपाल के जैसा है, अबिन दादा को जो उसी उम्र का उनका अबिन दादा का उम्र का बच्चे जब ध्यान ज्ञान से पकड़ के चलते हैं तो किसी का भी जिंदगी का दिशा और दशा सचमुच बदल जाता है। मैं मेरा घटना से शुरू करती हूँ। मेरा पापा इंग्लिश का प्रोफेसर थे, तो उनका ही कॉलेज में एक फिजिक्स का प्रोफेसर जिनका साथ मेरा पापा का बहुत
दोस्ती हुआ है। तो घर आते थे, तब मेरा उम्र था 14 साल। घर आते थे हर रोज, ठाकुर जी का कहानी, बहुत सारे कहानी दो तीन के बताते थे। लेकिन वो कहानी सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम एक दिन, ये जो हमारा पापा का जो दोस्त है, मित्र है, उनको बोला मुझे दीक्षा लेने का है। तो मैंने तो दीक्षा लिया है। और कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद मेरा 2 बहनें भी दीक्षा लिया है। तो चलते रहे। देखिए, सदगुरु का शरणापन्न हुआ, सतना मनन कर रहे थे, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। क्योंकि जब तक ठाकुर जी को प्यार ना करे, जब तक ठाकुर परिवार का कोई सदस्य को मैं अपना बना के नहीं चलूं, तब तक ये ज्यादा असर नहीं करता है। तो व्हेन आई वाज 24, तब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिला है। क्यों नौकरी मिला है वो भी बताती हूँ। हमारा 30 साल पहले तो इक्का दुक्का इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लेडीज होते थे। आजकल जैसे घर घर में ऐसे नहीं है। तो जैसे मैं इंजीनियरिंग पास किया तो तुरंत मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिला। कलकत्ता में मैं 1 साल रही हूँ। उसके बाद ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस है और मैं ऑफिसर्स का पोस्ट में थी। तो इसलिए जो ऑल इंडिया ट्रांसफर होता था, तो मुझे फिर शिलोंग में ट्रांसफर हुआ है। तो मेरा पापा, हमारा घर का जो संस्कार जो अच्छा अगर थोड़ा होता है, तो पापा ने बोला है इतना दूर जा रहे हो घर से, फिर तुमको आचार्य देव का आशीर्वाद लेके जाने का है। तो पापा ने मुझे देवघर लेके आया और आचार्य देव का सामने बोला कि जो दादा लोग रहते हैं, जो वो निवेदन किया है, ये लड़की अभी शिलोंग में पोस्टिंग हुआ है, वो जा रही है, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने को आया। तो अचानक फिर आचार्य देव बोला, बाप रे, इतना छोटी सी लड़की और उधर जाके क्वार्टर, बड़े बड़े क्वार्टर में रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो आश्रम में तो लड़कियां अलाउड नहीं है। आश्रम का आजू बाजू किधर किराए पे रहेगी और खाना बनाना तो आता नहीं है, इसलिए वो मंदिर में ही खाएगी। तो पूज्य आचार्य देव ने सारे व्यवस्था मुझे सब कर दिया है, खाने का, मंदिर में खाने का। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। लेकिन ये जो आचार्य देव का जो एक परश, जो एक प्यार, जो एक भालोबासा बांग्ला में बोलते, वो मेरा अंदर तभी से मतलब दिखने लगा। मैं क्या करती थी, जैसे कोई अच्छा फैमिली मिलता था, मैं बोलती थी मुझे भी देवघर जाना है, उनके साथ मैं देवघर चली जाती थी। मैंने सुना है कि आचार्य परिवार है पुरी में है, तो मैं ढूंढती थी कौन सा अच्छा फैमिली है, उनका साथ मैं पुरी में चले जाती थी। तो मेरा अंदर एक जुनून पैदा हो गया था कि नहीं, मुझे आचार्य देव का पास जाने का है। और आचार्य देव का पास जाने से वो देवघर में वो मेरा ही वाज सो कंसर्न, मुझे कहाँ रहने का है, क्या खाने का है, हर कुछ खबर लेते थे। मेरा घर वाले, मेरा परिवार लोगों को कोई नहीं जानता था, लेकिन देवघर में सभी लोग मुझे जानते थे कि एक लड़की आते हैं, अकेले है, उसका जो खानदान में सस्ते का तो दूर की बात है। तो एक बार ऐसे ऑफिस का काम पे मुझे कुछ महीने के लिए शायद मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर पटना में भेजा है। और पटना में तो बहुत गर्मी होता है और मेरा तो नॉनवेज चालू था। मैं जब दीक्षा लिया था, मुझे याद है शुक्रवार को मेरा रीति दादा ने बोला था कि शुक्रवार को कम से कम बगैर प्याज लहसुन का निरामिष भोजन करने का। लेकिन घर में सब लोग कैसे भी खा लेते थे, मुझे तो बहुत तकलीफ होता था। मैं सुबह खा के शाम को फिर एकदम मुंह लटका के बैठी थी, तो कैसे भी करके मैं शुक्रवार को गुजारा करती थी। तो फिर पटना में जब आई, और क्या है, मेरा पापा ने बोला है यू एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि नॉर्मल जो फैमिली होता है उसमें एक्चुअली क्या है, हम लोग बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर वो लोग एंजॉय करते हैं। दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो मेरा पापा भी बोले कि शादी का बाद नौकरी कर पाओगे या ससुराल में तुमको एंजॉय करने को देगा या नहीं, यू एंजॉय। तो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। हाथों में हजारों महीने का बाद हजारों रुपया तनख्वाह आता था। तो फिर पटना में ऐसे जब मैं फिर 5 दिन मेरा कलीग लोगों का साथ घूमना फिरना तो वो चालू था। लेकिन जैसे सैटरडे आता था या फ्राइडे आता था, तो मैं बोलती थी
मुझे सैटरडे संडे देवघर जाने का है। सब लोग मेरा पीछे पड़ते थे कि बड़े से बड़े होटल में जाएंगे, पार्टी करेंगे। क्या इस उम्र में क्या गुरु का पास जाने का, क्या उधर जाके सब पैसा दे के आने का, व्हाट इज दिस। मेरा मम्मी पापा को भी किसी ने भड़काया है, आपका लड़की गुरु का चक्कर में फंस गई है, देखो सारे पैसा उधर ही दे के आते हैं। और मुझे याद है तब कोई अगर मेरा पास आता था कि मंदिर का निर्माण करने का है, मेरे लिए जितना कम हो रख के मैं सारे दे देती थी। मेरा अंदर बहुत मतलब एक बदलाव जैसा आ रहे थे। तो फिर क्या होता था, मैं ऐसे करके मैं उनका बात नहीं सुनती थी। मैं जैसे सैटरडे संडे भाग भाग के मैं एकदम आनंद का साथ में देवघर चले जाती थी। और उधर तो सब लोग जानते हैं, सब बंदोबस्त मेरा हो ही जाता था। और कभी कभी क्या होता था कि जिनका साथ मैं जाती थी, फिर उधर जाके देवघर में बोलो, पुरी में बोलो, उधर जाके मैं जिसका साथ जाती थी फिर उन लोगों का मैं भूल ही जाती थी। क्योंकि मुझे लगता था मैं एक परम आश्रय स्थल में आ गई हूँ, मैं एकदम सुरक्षित हूँ। क्योंकि आने का टाइम का जो चिंता है, मैं किसका साथ आऊं, सब अचदेव करते थे। कभी कभी कामिनी डे का वो जो आसाम का, उनका साथ मुझे भेजते थे। कभी कभी और भी जो एकदम भरोसा का लायक ऐसे फैमिली का साथ मुझे भेजते थे। वो ऐसे चल रहा था। तो एक बार बहुत गर्मी में मैंने बहुत चिकन मटन वो सब मैं बहुत खाती थी। वो खा के पटना में मैं बीमार गिरने के बाद फिर मुझे डॉक्टर दिखाया, ऑफिसर का जो ऑफिसर्स हॉस्टल में जो डॉक्टर्स आते हैं, तो मुझे बोला आप इस हफ्ते ट्रैवल मत करो। तो मैंने सुना और कुछ नहीं बोला। अगले सुबह मैंने एक टेबलेट के बजाय 2-3 टेबलेट खा के मैं फिर चल पड़ी। 4-5 घंटा लगता था देवघर आने के लिए। फिर आने के बाद मुझे दादा मेरा चेहरा देख के बोला तेरे को क्या हुआ? मैं बोली मेरा तबीयत बहुत खराब है, बहुत डिहाइड्रेशन जैसे हुआ है। तो अच्युतदेव ने, और वीआईपी गेस्ट हाउस में मैं हमेशा रहती थी, तो फिर अच्युतदेव ने एक नहीं दो डॉक्टर, सपन विश्वास दा और एक माइती दा को भेज के वो मेरा ट्रीटमेंट कराते थे। और मैं हमेशा मॉर्निंग में, जैसे फ्राइडे को आती थी या सैटरडे को आती थी, और मंडे मॉर्निंग में जाके मैं ऑफिस ज्वाइन करती थी। और मैं अच्युतदेव का पास जाती थी हंसते हंसते, और वापस जब जाती थी मैं ऑफिस रोते रोते, जैसे पापा से एक लड़की विदा लेके जाती है, वैसे मैं रोते रोते मैं जाती थी। और इस दौरान क्या होता था, फिर जब डॉक्टर भेज रहे थे, फिर मेरा तबीयत और भी बिगड़ रहे थे। फिर कुछ डॉक्टर लोग, दोनों डॉक्टर को बहुत फटकार लगा रहा है, हाँ तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर अगले दिन पूजनीय बिंकी दादा आए। बिंकी दादा आके बोलते आप बाबा का सामने, मतलब अच्युतदेव का सामने आप बैठो। तो मैंने बैठा है और एक दवाई मुझे बोला हाँ करो। फिर मैंने हाँ किया है, तो मुझे उन्होंने दवाई दिया है, मैं खाया है। फिर शाम को ही मेरा तबीयत एकदम अचानक एकदम ठीक होने लगा। फिर मैं उछल कूद रही थी और मैं सबको बोल रही थी मैं ठीक हो गई, मैं बहुत अच्छे हो गए। तो एक लड़का जो देवघर में रहता है, वो मुझे बोल रहे हैं कि दीदी आप तो सबको बहुत आसानी से बोल रहे हो कि आप ठीक हो गए हो गए, मालूम है आपको आज क्या हुआ? मैं बोले क्या हुआ, मुझे तो मालूम नहीं है। तो वो लड़का ने बोला दीदी आज ना पितृदेव का सामने अच्युतदेव सुबह जब जाते हैं गए, और अच्युतदेव ने बोले बाबा एक लड़की ना अकेले आते हैं हमेशा, वो बहुत बीमार है, वीआईपी गेस्ट हाउस में है, वो आप उसको बचाइए, नहीं तो वो बचेगी नहीं। तब पितृदेव ने दवाई दिया था, जो दवाई मुझे पूजनीय बिंकी दादा ने मुझे अच्युतदेव का सामने दिया है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने मुझे जीवन दान ही तो दिया है। मेरा उधर तो कोई देख रख भाल करने वाले कोई नहीं था। मैं ऑफिस में पटना में मरने वाली थी, लेकिन उन्होंने कैसे मेरा अंदर जो एक फोर्स से, क्या फोर्स से, अच्छे का तरफ जाने का, मंगल की तरफ जाने का, वही मुझे बचा लिया। तो फिर ऐसे सिलसिला चलते रहे। तो अच्युतदेव मुझे बोला, और सुबह शाम ना तब हम लोग 8-10 लोग हम उनका घर पे भी जाते थे। तो अच्युतदेव ने मुझे बोला कि घर आने का। तो मैंने मतलब दोपहर को मैं दोपहर को घर है, फिर पूजनीय माँ भी कभी कभी होती थी। फिर घर गई
तो मुझे सब बोला कि इतना गर्मी में ये सब खा के तेरा पूरा बॉडी इरिटेट हो गया। फिर उन्होंने मुझे सस्तवनी का मंत्र कैसे भेजना है, मंत्र कैसे उच्चारण करने का है, मंत्र का अर्थ क्या है, सब समझा बुझा के मुझे बोली जा घर जाएगी, मामी बहुत डांटेगी, हाँ सस्तवनी लेके आई है। तो फिर और यू विल नॉट बिलीव, अगर इधर यंग जनरेशन अगर तुम लोग हो तो मैं बता रही हूँ तुमको, लोगों को अनमेरिड अवस्था में सस्तवनी लेने के लिए लोग डरते हैं। माँ बाप बोलते हैं मत लो क्योंकि वो शादी करने में प्रॉब्लम होगा। और यू कैन इमेजिन मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है इतना हाई हो गया था, क्योंकि वो आचार्य देव ने मुझे वो सब समझा के बुझा के वो उन्होंने छोड़ा है। और उन्होंने बोला कि इधर जैसे तू रहती है वैसे ही हर टाइम रहने का। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने जो मुझे दिशा और दशा वो दिखा के दिया है, उसी हिसाब से चलने से लोगों को, ह्यूमन बीइंग को कहाँ से वो कहाँ पहुंचा देता है। एक साधारण इंसान, एक साधारण व्यक्तित्व बन जाते हैं। फिर तो मैं घर गई, सचमुच मेरा मामी तो बहुत दुखी हो गए। अरे बाप रे, मैं इतना पढ़ी लिखी, वो भी बंगाली में, कितना कहाँ मिलता है इतना, और 30 साल पहले कहाँ मिलता है इतना पढ़े लिखे और वेजिटेरियन है। लेकिन देखिए वो लोग जब कुछ भी करता है इसका पीछे बहुत वजह रहता है और एकदम पथ साफ रहता है। आचार्य देव ने मुझे बोले थे तब कि किसी इंसान का अंदर रहता है अच्छी तरह से रहने का अनंत संभावना रहता है और असीम पथ रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हम सोचते जो अनंत पथ जो है ना, और मतलब अनंत संभावना और असीम जो पथ है वो नहीं है। हम क्या करते हैं, एकदम टिपिकल जो स्टीरियोटाइपिक क्या है, मौज मस्ती करो, पढ़ाई करो, कमाई करो और खुद का सोचो, दूसरों का कुछ भी नहीं सोचो। हाँ, IIT पढ़ो, डॉक्टर बनो, पैसा, सुख, आराम। लेकिन ये सब करके कोई भी आदमी, कोई भी फैमिली, कोई भी व्यक्ति अकेला जी नहीं सकते, ये नहीं सिखाता है। लेकिन ठाकुर परिवार, आचार्य देव, पूजनीय बाबा दादा, अबिन दादा, सबको लेके कैसे चलना का है। जिंदगी में सबको जरूरत है। आज मैं इधर जो बात कर रही हूँ, मुझे चपाती बनाने का है, वो जो चक्की में जो गेहूं पीसता है, अगर गेहूं पीसने वाला बहुत बुरा गेहूं देता है, उसमें मिलावट करता है, तो आपका तबीयत, मेरा तबीयत ठीक रहेगा क्या? आजकल जो दिखाता है, ये जो सब्जी वाले बोलो, दूध वाले बोलो, जो मिलावट जो करता है, इससे शिशुओं का कितना उसमें उनमें असर होता है, कितना पंगु पैदा होता है, कितने डिसेबल्ड, कितने सारे लोगों का किडनी बोलोली क्षति होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के लिए नहीं सोचता है, इसीलिए। लेकिन जब हम सत्संगी बनते हैं, हम सस्ते नहीं लेते हैं, हम उस सब में, हम मातृ सम्मेलन बोलो, हम सत्संग में जब अटेंड करते हैं, जब हमारा विवेक, विवेचना, हमारा आचार विचार जब चेंज होता है, तब मेरा हाथ कांपेगा दूध में मिलावटी करने के लिए, वेजिटेबल में मिलावटी, क्योंकि मैं तब सोचूंगी, अरे ये तो परम पिता का संतान है, मैं भी परम पिता का संतान हूँ, तो इसका क्षति हम कैसे करेंगे? तो इसलिए जो जनरेशन है, मैं ना जिस उम्र में आचार्य देव ने मुझे पकड़ा था, उस उम्र में अगर नहीं पकड़ते, जरा सोचो आज मैं क्या होने वाली थी। वही इंजीनियर मैं हूँ, वही इंजीनियर तब भी मैं रहती थी, अभी मैं रहती हूँ। मैं फिर 6 महीने में मेरा शादी हो गया। शादी का पापा ने आनंद बाजार पेपर में दिया, एक ही वेजिटेरियन पात्र आया, बाकी सारे नॉन वेज। तो मेरा पापा बोलते नहीं, वो जो वेजिटेरियन है उनको ही देखने का है, वो IITian है। तो फिर अब जरा देखिए, एक ही प्रपोजल में मुझे जिंदगी में किसी ने देखा नहीं। शहादा ने पहले देखा, और शहादा भी ऐसे कोई लड़की देखी नहीं। पहला शहादा का जिंदगी में भी मैं हूं कि मुझे ही पहले देखा है। तो उसी दिन शादी तय हो गया है। फिर उसी दिन रात को मैं और मेरा पापा और मेरा जेठ और मेरा हस्बैंड, हम लोग तब ठाकुर परिवार पुरी में थे। पुरी में गए, आचार्य देव ने हम लोगों को बुलाया है
पितृदेव का सामने पितृदेव तब बात नहीं करते, एक दो वर्ड बोलते हैं। तो आचार्य देव ने खुद निवेदन किया है, हम लोग तो कठपुतलियों की तरह खड़े रहे। फिर बेटा प्रणाम किया है, फिर आचार्य देव ने बोला बाबा ये लड़का ये लड़की उन लोगों का शादी है। आचार्य देव एक वर्ड तब बोला था, अभी भी मेरा कानों में वो गूंजता रहता है, भालो। इसका मतलब क्या है, आज मैं शायद दूसरा ऑफिसर का भी हो सकती थी, लेकिन मेरा मिस्टर और आचार्य देव ने जैसे मुझे मोल्ड किया है, मुझे मेरा परिवर्तन किया है। मैंने भी आके जब मुंबई में शादी के बाद आके आया है, तो मेरा मिस्टर क्या था, वो दीक्षित तो था लेकिन ना सस्त्वेनी था, ना उनका जो फ्रेंड सर्कल उसी में सत्संग का माहौल था ही नहीं, कोई भी नहीं था। तो आके मैंने धीरे धीरे उनको बोलती थी बदलापुर में चलो, उधर जंगल है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम जाते रहे। तो आचार्य देव मेरा प्रेरणा बने और मैं मेरा हस्बैंड का प्रेरणा बने। आज अगर ये नहीं होता तो मैं देखती हूँ कभी कभार हमारा 28-29 साल शादी हुआ है, और 2-3 पार्टी में मैं IITN का पार्टी में गई, मैं जाके देखा उधर बाल बच्चे को, मतलब आप यू कांट टेक योर चिल्ड्रन देयर। क्यों? क्योंकि उधर का जो माहौल है उसमें सिर्फ कंपटीशन है, और स्टार्टिंग से एंड तक वाइन 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 पीना और गप्पे मारना। तो व्हाट इज दैट? समाज के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? तो आप शायद बोलेंगे नहीं वो लोग NGO चलाते हैं, वो लोग बहुत कुछ करते हैं समाज के लिए। ठीक है, मैं मानती हूँ NGOs है, लेकिन अब जरा देखो वो भी ठाकुर जी ने हमको सिखाया है, समझाया है। क्योंकि अगर मैं ना इधर नीचे मेरा सोसाइटी का नीचे मैं मेरा जो बर्थडे होता है, बर्थडे का दिन मैं जाके और तो कुछ करती नहीं हूँ। बर्थडे का दिन मैं जो हमारा झोपड़पट्टी का बच्चे लोग आते हैं उधर मैं चॉकलेट केक्स या मैं बांटती हूँ। आज बांटा, ठीक है, काल भी बांटा, परसों भी बांटा, उसके अगले दिन सोचो मैं बांटा नहीं, तो वो लोग मेरा इंतजार करते रहेंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे, फिर मुंह लटका के बोलेंगे आंटी आए नहीं। उसका अगले दिन भी इंतजार करते रहा, मैं आई नहीं, फिर वो लोग क्या बोलेंगे कि आंटी कंजूस है, इतना है फिर भी नहीं बांटती है। तो NGOs भी ऐसे ही होता है कि 1, 2, 3, 4 दिन खिलाता है, लेकिन ठाकुर जी ने जो बोला है और आचार्य देव ने जो दीक्षा बाबा दादा जो दीक्षा वो करते, वो क्या करते? धर्मदान करते हैं। धर्मदान से क्या होता है, एक जो भिखारी है, एक जो बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, वो सीखता है कैसे बचना और बढ़ना। तो बचना और बढ़ना जब सीख जाता है तो उसका भीख मांगना बंद हो जाता है और वो अपने पैरों पे खड़े होता है। मैं जब बदलापुर में जब जाती हूँ, पहले तो हर संडे को जाती थी, तब जाके जब मैं देखती हूँ माँ, सचमुच में बताऊं, कितने सारे इंजीनियर से, कितने सारे डॉक्टर से उधर संडे का दिन दारू पी के पार्टी करना चाहिए था उन लोगों को, क्योंकि संडे सैटरडे में आजकल का जो सोसाइटी है उसमें तो वही होता है। लेकिन मैं जब देखती हूँ ऐसे दीक्षा शक्ति ने लेके यंग लड़के लोग, यंग लड़कियां आके उधर हमारा जो आनंद बाजार है, जो भंडारा है, उसमें काम करते हैं, उसमें जो सत्संग होता है, सत्संग में बैठ के पूरा सत्संग एंजॉय करते हैं। तो मैं सचमुच सोचती हूँ कि ये इसका माँ लोग जो है ना, वो तो रत्न गर्भा है। क्यों? क्योंकि देखिए उनका पास शिक्षा भी है, हाईली क्वालिफाइड है, पैसा भी है, लेकिन वो लोग दिग्भ्रांत नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। वो लोग क्या है, वो लोग खुद को संभाल के ठाकुर का चरण में दूसरे लोगों को भी लाते हैं। उनको देख के माहौल भी परिवर्तन होता है। अब जरा सोसाइटी का बाहर, हमारा जो सत्संग का बाहर का और अंदर का मैं कंपेयर करूंगी। क्यों ठाकुर जी को पकड़ने का है? जब उत्सव होता है, चाहे देवघर में बोलो, चाहे बदलापुर में बोलो, चाहे आपका इधर में बोलो, आप आपका यंग लड़की लोगों को आराम से आप भेज सकते हो, या लड़के लोगों को उधर, ना कोई उसको मतलब उसका साथ बदतमीजी करने वाला का सिचुएशन तो है नहीं। लेकिन ऐसे कोई भी फंक्शंस है जहाँ पे एक माँ बेटी को भेज नहीं पाएगी, बार बार फोन करेगी, तू कैसी है, किसका साथ है? क्यों? क्योंकि परिवेश, हमारा सत्संग ने जो एक रिवॉल्यूशन है सत्संग में, जो घर घर में परिवेश, जो आश्रम में, जो बड़ा बड़ा उत्सव में जो परिवेश दिया है, वो बाहर का सोसाइटी नहीं दे पाते है।
चाहे बड़े बड़े डॉक्टर, चाहे बड़े बड़े इंजीनियर पैदा कर सकता है, लेकिन डॉक्टर को वो मैंने देखा है, जो डॉक्टर का आदर्श नहीं है वो तो जो पेशेंट है उसको भी बोलते हैं थोड़ा थोड़ा दारू पीने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ही ऑल्सो नोज दैट इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो सिगरेट पीता है इंजीनियर, ही ऑल्सो नोज कि सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसीलिए हमारा जो ठाकुर है, हमारा जो आचार्य परिवार है, हमारा जो परंपरा है, वो आचरण सिद्ध पुरुष है, वाक सिद्ध पुरुष है, वो आचरण करके दिखाता है। मेरा जो पिछले बार मेरा मेजली बहन का जो लड़की है उसको MBBS में चांस मिला है, वो डॉक्टरी का पढ़ रही है। तो मैं पूछी हूँ कि वो अबिन दादा का पास जाती है क्या, अबिन दादा से मिलते हैं क्या? तो मेरा माँ बोलते हैं हाँ उसको बहुत लगन है, और अबिन दादा भी उसको हमेशा पूछते रहते हैं। उसका मतलब क्या है, वो पढ़ भी रहा है, बढ़ भी रहा है, लेकिन उसका दिशा और दशा अगर अबिन दादा रहता है कभी नष्ट नहीं होगा। मेरा सबसे छोटी बहन है मौसमी साहा, कलकत्ता में रहती है। उसका भी एक लड़का और एक लड़की है, कलकत्ता बॉयज और कलकत्ता गर्ल्स में पढ़ती है। उसका लड़का को इस बार मेडिकल में चांस मिला है, मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में, वो गवर्नमेंट कॉलेज में चांस मिला है, वो एडमिशन लिया है। लेकिन मेरा बहन हमेशा बोलती रहती है, मेरा भी मन में ये चाहत है कि मैं मेरा बेटा और बेटी को अबिन दादा का साथ में कि संग करने का जो एक उन्मादना, जो एक नेशा वो कराना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल समाज में क्या चल रहा है ये तो हम सभी को मालूम है। जब बच्चे बड़े हो जाता है, जब छोटा रहता है तो माँ का पास रहता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद जब उच्च शिक्षा हो जाता है, जब विदेशों में चला जाते हैं, माँ बाप कितना कष्ट करके, आजकल तो जमीन बेच के सब कुछ करके भी माँ बाप चाहते हैं नहीं मेरा जैसा कष्ट बच्चे ना करे, मेरा बच्चा फ्लाइट में चले, मैं ट्रेन से सफर किया, मेरा बच्चा लेकिन हाँ माँ हमारा टाइम आप बता दीजिएगा प्लीज। तो लेकिन हमने देखा है हमारा जो आचार्य परिवार का शिक्षा है, एक बार मैं ऊपर पूजनीय बाबा दादा का रूम में थी, तो अबिन दादा आए, तो पूजनीय बाबा दादा अबिन दादा को बोल रहे हैं जाओ जाके माँ को मसाला का डब्बा नहीं मिल रहा है, माँ को ढूंढ के दिलाओ। फिर पूजनीय अबिन दादा भाग के गया, मुझे ये बताइए अगर पूजनीय बोरानी माँ बताती है मुझे ये नहीं मिल रहा है, तो एक दो क्या है, हजारों औरत जाके ढूंढ के देंगे, लेकिन उनका शिक्षा क्या है जरा देखिए। एक बार पूजनीय अबिन दादा या अर्नो दादा मैं भूल गई, मैं ऊपर थी तो बात नहीं मान रहा था, कोई एक बात नहीं मान रहा था, तो उनका साथ जो रहता है वो लड़का बोल रहे नहीं बाबा तुमको तो ये बात सुनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माँ ने बोला है। तो जरा देखिए ठाकुर जी ने माँ को खुश करने के लिए माँ सर्वस्व थे, ऐसे ही ठाकुर परिवार भी ऐसे है, परिवार का संतान लोगों को भी ऐसे सिखाया जाता है कि माँ जो बोलती है वो पालन करो। तब जो ठाकुर जी ने बोला है पिता श्रद्धा माए टान, मामी का साथ टान होने से बच्चा नष्ट नहीं होता है। लेकिन आजकल घर घर में देखो मोबाइल लेके यंग बच्चे लोग माँ का तरफ, ये लॉकडाउन में माता पिता का कितना कष्ट है, कितना देखता है। लेकिन सत्संग परिवार में मुझे तो लगता है फिर भी बच्चे लोगों का बहुत थोड़ा भी, मतलब चाहे कितना भी टीवी हो, चाहे कितना भी मोबाइल हो, वो लोग मामी पापा को जरूर मदद करता है। क्यों? क्योंकि उनका जो शिक्षा है वो है क्या है, चलन पूजा, चरण पूजा नहीं है। और ये जो देव देवियों ने हमको बहुत सारे युगों तक हमको सिखाया है, क्या है कि पूजा करो, धर्म अनुसरण करो। लेकिन देखिए एक छोटा उदाहरण मैं देती हूँ। 2-3 साल पहले माँ ऊर्जी उपासना माँ का आ रहा है, माँ आप म्यूट कीजिए। माँ और एक आपके लिए
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो मैं एक घटना बोल के मैं खत्म करती हूँ कि 2-3 साल पहले एक टीवी पे मैंने देखा है कि एक IITian लड़का और लड़की, वो लोग लड़का पास हो गया है, लड़की फिर भी पढ़ाई कर रही है। वो क्या किया, वो लोग, लड़की का बर्थडे था, वो लोग होटल में गया मनाने के लिए, बहुत अच्छी तरह से मनाने के लिए। तो जाने का बाद फिर वो लोग खाना खा रहे, खाते खाते लड़की फ्रैंकली बोल दिया कि पता है तुमको, मेरा साथ ना वो तुम्हारा ही बैचमेट एक लड़का का थोड़ी दिन के लिए अफेयर था। जैसे बोला वैसे लड़का इतना मतलब अंदर अंदर इतना गुस्सा हो गया, उसी रात को उसको मर्डर करके वहां से भागा। है जो व्यवहारिक नहीं है, जो प्रयोग नहीं है, जिससे एक इंसान का जो अहमियत वही नहीं समझा, तो वो समाज का क्या करेगा, व्यक्ति का क्या करेगा, परिवार का क्या करेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ जैसे मैं बच गई थी अच्छा मतलब बुरे बुलावा से, वैसे हर यंग जनरेशन चाहे लड़का हो लड़की हो पूजनीय बाबा दादा का साथ, अभिनेता का साथ युक्त रहे और आगे बढ़े, उन्नति का तरफ बढ़े, लेकिन पवित्रता का साथ और अनुशासन का साथ और नियम श्रृंखला का साथ। मैं सबका मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। So many thanks. जय गुरु। अभी मैं छाया माँ को बुलाना चाहती हूँ। जय गुरु माँ। আমি সর্বপ্রথম পরমারাধ্য শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীপাদ পদ্মে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই। পরমারাধ্যা শ্রী শ্রী বর্মাচরণে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম। যুগাচার্য শ্রী বরদার চরণে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম। প্রধান আচার্য শ্রী শ্রী দাদার চরণে অনন্ত কোটি প্রণাম। অনলাইন মাতৃ সম্মেলনে উপস্থিত সৎসঙ্গী বৃন্দ এবং যারা উপস্থিত হতে পারেননি তাদের সবাইকে আমার রানন্দিত জয় গুরু। আজ আমার বয়স 81 বছর। ছোট্টবেলা থেকে 5 বছর বয়স থেকে আমি 25 বছর বয়স পর্যন্ত দেওঘরে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং শ্রী শ্রী ঠাকুরের দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছে। তার সে মাধুর্য অবর্ণনীয়। শ্রী শ্রী ঠাকুরের হাঁটা চলা চাউনি ও গলার মধ্যে এক অবর্ণনীয় আকর্ষণ অনুভব করতাম। শ্রী শ্রী ঠাকুর তখন সকালের দিকে কখনো কোনো গাছের ছায়ায় শুভ্র শ্বেত শুদ্ধ বিছানায় বসে থাকতেন, কখনো বা শ্রী শ্রী বড়মা একটি ছোট্ট মোড়া নিয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছেই বসতেন। দয়াল ঠাকুর যেখানেই বসতেন কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে ভিড় হয়ে যেত। শ্রী শ্রী ঠাকুর হঠাৎ করে কখনো বা দাঁড়িয়েই চলতে শুরু করতেন, ভক্তবৃন্দ তাকে অনুসরণ করতেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর কিন্তু সবার আগে ধীর গতিতে হেঁটে যেতেন, বাকিরা সবাই পিছিয়ে পড়তো। শ্রী শ্রী ঠাকুর যখন স্নান করতেন, স্নান উৎসবে আপনারা সবাই যে জায়গাটা দেখেছেন, আগে সেখানে খুব বড় একটা চৌবাচ্চা ছিল, কিন্তু সেখানেও দয়ালের নিস্তার নেই। ভক্তরা সেখানেও বেড়ার বাইরে থেকে তাকে ঘিরে থাকতেন এবং অপলক দৃষ্টিতে তার স্নান দর্শন করতেন। দ্বীপ্রহরে যেখানে শ্রী শ্রী ঠাকুর বিশ্রাম গ্রহণ করতেন, সেই ঘরটিতেই এখন শ্রী শ্রী ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সে সময় শ্রী শ্রী ঠাকুর গড়গড়া টানতে টানতে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হাস্যরসে মশগুল হয়ে যেতেন। অপূর্ব সে দৃশ্য। এবার আমার জীবনে শ্রী শ্রী ঠাকুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভাবছি কোথা থেকে শুরু করব আর কোথায় বা শেষ করব। আমার বাবা টাটা কোম্পানিতে চাকুরি করতেন। আমরা যে বেঁচে আছি সে শুধু শ্রী শ্রী ঠাকুরকে ধরেছিলাম বলেই। আমার যখন 5-6 বছর বয়স তখন আমার বাবা ইহলোক ত্যাগ করেন। বাবার টিবি হয়েছিল। সে সময় রোগটাকে লোকে রাজরোগ বলতো, খুব ভয় পেত। জামশেদপুর সৎসঙ্গী সমাজের মধ্যমণি ছিলেন তখন শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ সরকার মহাশয়। আমরা 2 বোন তখন বাবার কাছেই থাকতাম। আমার 3 বছর বয়সে মা গত হয়েছিলেন। বাবা আমাদের 2 বোনকে নিয়ে অত্যন্ত চিন্তায় থাকতেন। কমলাক্ষ সরকার দা আমার বাবাকে টিবি হাসপাতাল রাঁচিতে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। হসপিটাল যাওয়ার আগে বাবা আমাদের 2 বোনকে ওনার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, দাদা, লোকেরা ইহলোক ত্যাগ করার আগে নিজস্ব সম্পত্তি সব বিতরণ করে যায়, আমি আমার মেয়ে দুটিকে আপনার হাতে দিয়ে গেলাম।
সেই থেকে আমিও আমার দিদি ওনার বাড়িতে সব ভাই বোনেদের সঙ্গে একই সঙ্গে বেড়ে উঠি। সব ভাই বোনেদের মতো আমিও ওনার যদি না 5 বছর সময় মতো সব সদ্গুরুর দীক্ষা গ্রহণ করায় জীবনে আমার কোনো কষ্টই হয়নি। শ্রী শ্রী ঠাকুরকে একবার যে ধরেছে, ঠাকুর তার হাতটি কখনো ছাড়েন না। আমার বাবা টাটা কোম্পানিতে চাকরি করতেন, আমাদের ঘরের সামনে বিশাল একটা মাঠ ছিল। একবার বাবা দীক্ষা দিয়ে ঘরে ফিরছিলেন, মাঠটা পেরোবার সময় হঠাৎ করে দুজন সর্দার তরোয়াল নিয়ে বাবাকে ঘিরে ধরে, বলে কি আছে বার করো বাবা, বার করো। বাবার কাছে কেবলমাত্র 10টা টাকা ছিল, আর ছিল দীক্ষা দানের পাঞ্জা ও শ্রী শ্রী ঠাকুরের ফটো। সর্দারজিরা পাঞ্জা ও ফটো ফেরত তো দিলই, সঙ্গে 10টা টাকাও ফেরত দিল। শুধু তাই নয়, তারা আবার বলল চলুন আপনাকে রাস্তায় তুলে দিয়ে আসি। সম্ভবত আরো কিছু দুষ্কৃতী ঝোপের মধ্যে লুকিয়েছিল। সেদিন বাবা শুধু ঠাকুরের দয়াতেই বেঁচে গেছিলেন। আমরা 2 বোন যে বেঁচে আছি এবং প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি, সে শুধু শ্রী শ্রী ঠাকুরের অসীম কৃপায়। শ্রী শ্রী ঠাকুরের অপার করুণার কথা মনে করে হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছে। বাবা যখন অসুস্থ, টিবি হয়েছে, সে সময় আশেপাশের লোকেরা অন্যত্র যাওয়ার কথা চিন্তা করছে। এ সময় চণ্ডীদা বাবাই ওনাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বাবার সেবায় তৎপর হয়ে ওঠেন। উনি নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে এসে বাবার কাছেই থাকতে শুরু করেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত বাবার সেবা করে গেছেন। যখন বাবাকে ইটকি রাঁচি হসপিটালে ভর্তি করা হলো, তখন উনিও সঙ্গে গেছিলেন, কিন্তু তারপর ওনাকে আর কখনো দেখিনি। ওনার কথা খুব মনে পড়ছে, জানি না ওনার কি হয়েছিল, খুব মনে পড়ে ওনার কথা। শ্রী ঠাকুর নিশ্চয়ই ওনাকে নিজের পাদপদ্মে স্থান দিয়েছেন। বাবা শ্রী ঠাকুরকে ধরেছিলেন এবং আমাদেরকে ওই পথে চালিত করেছিলেন বলে আমরা সব সময় সব বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি। শ্রী ঠাকুর বাবুর মাধ্যমে আমাদেরকে সব সময় রক্ষা করেছেন। শ্রী ঠাকুরের দয়ার কথা বলতে গিয়ে একটি গানের কলি খুব মনে পড়ছে। এটি হলো দুয়ারে মনে ডাকছে এমন মোহন স্বরে, এলো রে দুয়ারে বলে নে রে আমায় আপন করে, এলো রে দুয়ারে দুরাগলিয়া নয়ন দিয়া রহিতে নারী যে ঘরে, বলে দুয়ার খুলে রে ঘরে এনেছি যে তোদের তরে, দুয়ার খুলে নে রে ঘরে এনেছি যে তোদের তরে, নামামৃত রসধারে শুষ্ক তরু মঞ্জরে, হরি নামামৃত রসধারে শুষ্ক তরু মঞ্জরে, এলো রে দুয়ারে মনে ডাকছে এমন মোহন স্বরে, এলো রে দুয়ারে রাজুরি রাজ মোর তরে আজ কাঙালের বেশে তৃষিত নয়নে চাহে মোর পানে, কেমনে ফিরাবো তারে, তৃষিত নয়নে চাহে মোর পানে, কেমনে ফিরাবো তারে, কেমন করে বলি বলে আখির মনে ভুলালো রে, কেমন করে বলি বলে আখির মনে ভুলালো রে, কি জিনিস নয়ন কোণে কি বিজুলি খেলে রে, আর কি জিনিস নয়ন কোণে কি বিজুলি খেলে রে, এলো রে দুয়ারে মনে ডাকছে এমন মোহন স্বরে, এলো রে দুয়ারে
দৌড়াগড়িয়া নয়ন মুদিয়া রহিতে নারী যে ঘরে, দৌড়াগড়িয়া নয়ন মুদিয়া রহিতে নারী যে ঘরে। উজালো আলোক ঝরে, আধার কাটিল রে ভূমির নেশা, ছুটিল রে প্রলয় আধার কাটিল রে ভূমির নেশা, ছুটিল রে নাম তরঙ্গে প্রাণ ঢালিলে চির চেতন যাবে রে, নাম তরঙ্গে প্রাণ ঢালিলে চির চেতন যাবে রে। এলো রে দুয়ারে মোরে রাতে এমন মোহন স্বরে, এলো রে দুয়ারে আর বাহিরে অন্তরে মেদিনী অমরে ধ্বনি তো কিসের রে, আর বাহিরে অন্তরে মেদিনী অম্বরে ধ্বনি তো কিসের রে। দাম মানসে উতলিল প্রাণ, ডুবিল ডুবিল দেশ, উদাম মানসে উতলিল প্রাণ, ডুবিল ডুবিল দেশ। দিগন্ত ধ্বনিল রে কি আনন্দ আনন্দ রে, দিগন্ত ধ্বনিল রে কি আনন্দ আনন্দ, ঋষি সবাই আসি হরি নামে মাতে রে, বিদ্যানাই ঋষি সবাই আসি হরি নামে মাতে রে। দুয়ারে মোরে ডাকতে এমন মোহন স্বরে, এলো রে দুয়ারে মধুর পরশ লাগিল রে, সুপ্ত পরাণ জাগিল রে, মধুর পরশ লাগিল রে, সুপ্ত পরাণ জাগিল রে। প্রেম সাগরে প্রেম বিলায়ে প্রেম সাগরে ভাসি রে, প্রেম গরবে প্রেম বিলায়ে প্রেম সাগরে ভাসি রে। এলো রে দুয়ারে মোরে ডাকতে এমন মধুর স্বরে, এলো রে দুয়ারে। এবার আমি বাবুর কথা। বাবুকে সৃষ্টি ঠাকুর ননীলাক্ষ বলে ডাকতেন, দেখলেই খুব খুশি হতেন, বলতেন ননীলাক্ষ আইছিস, আয়। একবার বাবু সৃষ্টি ঠাকুরের কাছে গেছেন, ঠাকুর বাবুকে বললেন, মাস ও তিথি ইত্যাদি আমার মনে নেই, ননীলাক্ষ আগামী একটি নিশ্চিত তারিখের মধ্যে আমাকে তুই 100টি লাঠি, যার হাতলের নিচে কিছুটা অংশ সোনা দিয়ে মোড়া থাকবে, আমার কাছে যেভাবেই হোক ভিক্ষে করে বা ধার করে যেভাবেই হোক পৌঁছে দিবি। বাবু ভিক্ষে করে এবং ধার করে নিশ্চিত তিথিতেই 100টি লাঠি সৃষ্টি ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্পণ করেছিলেন। আশ্রম থেকে ফিরে এসে সেদিন যেদিন পুনঃ কাজে যোগদান করলেন, সেই দিনই একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। বাবু রেল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল মিলের নিচে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিলেন, পাশেই জ্বলন্ত আগুন, রেল লাইনগুলো তৈরি হয়ে গিয়ে বেরোচ্ছে। হঠাৎ করে ওপরের ক্রেনের একটা অংশ ভেঙে বাবুর পায়ের কাছে পড়লো, পড়ে আঙুলটা একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সৃষ্টি ঠাকুরের কৃপায় বাবু কিন্তু সে যাত্রা বেঁচে গেছিলেন। জামশেদপুরের আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকেরা নিজেদের ক্ষেতের চাল বিক্রি করতে আসতো। আমাদের বাড়িতেও এরকম অনেক চাষি পুরুষ ও মহিলা চাল নিয়ে আসতো। একবার একটি মহিলা প্রায় চাল নিয়ে আসতো যে তাকে বহুদিন দেখা যায়নি। একদিন মহিলাটির ছেলে এলো চাল বিক্রি করতে। বাবু ওর ছেলেটিকে বললেন, তোর মাকে অনেকদিন দেখিনি, কি হয়েছে তোর মায়ের? ছেলেটি বলল, মা খুব অসুস্থ, কিচ্ছু খেতে পারে না, গলায় খুব ব্যথা। বাবু বললেন, নিয়ে আয়, তোর মাকে এক্সরে করলে বোঝা যাবে কি হয়েছে। ছেলেটি একদিন মাকে নিয়ে এলো। বাবু ওর মাকে টাটা মেন হসপিটালে নিয়ে গিয়ে এক্সরে করালেন। এক্সরেতে দেখা গেল ওর মায়ের গলায় একটা সেফটি পিন মুখ খোলা অবস্থায় আটকে আছে।
রাত্রে পান্তা খাওয়ার সময় হয়তো কোনো ভাবে ওটা খাবার সঙ্গে পৌঁছে গিয়ে গলার চাপে পড়ে যে টিফিনটি মুখটা খুলে গলায় আটকে যায়। সেই এক্সরে ছবিটা আমরা সবাই দেখেছি। তারপর মহিলাটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে অপারেশন করালেন বাবু, মহিলাটি সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলো। এরকম কত কথা মনে পড়ছে, কিন্তু আজ এখানেই শেষ করছি। সকলের জন্য সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করে সৃষ্টি ঠাকুরের কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করছি। বাবু ছিলেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। তার ইচ্ছা পূরণ কিভাবে তার ইচ্ছা পূরণ করা যায়, তার জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন বাবু। শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে সকলের জন্য সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে আজ এখানেই শেষ করছি। জয় গুরু। মাগো, একবার যদি আপনি সবাইকে একটু আপনার চেহারাটা দেখান। ছায়া মা, একটু দূর থেকে ধরো, ঠিক করে আসছে না ছবিটা। থ্যাংক ইউ সো মাচ ছায়া মা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ছায়া মা, আপনি খুবই বিশেষ। উপস্থিত প্রত্যেক মাকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আনন্দিত জয়গুরু জানাই। আমি একটি হিন্দি ভজন গাইবার চেষ্টা করছি। জয়গুরু।
জয়গুরু। মানুষ মানুষ প্রোগ্রাম পায় না। আমি কত মানুষকে দেখি শুধু একটুখানি বলবে বা একটু গান করবে, তারা কত মানে আগ্রহ ভরে তাকিয়ে আছে, কেউ তাদের ডাকে না। কিন্তু তোমার সাথে কথা বলার পরে আমি বুঝতে পেরেছি এবং তোমাকে দেখেও সেটা বোঝা যাচ্ছে। তবে এই ভাগ্যটা তো সবার হয় না, ঠাকুরের খুব দয়া আছে তোমার উপরে। আর তুমি দেখতেও ভীষণ সুন্দর, তুমি নিশ্চয়ই খুব নাম করো। আমরা যারা সৎসঙ্গী, আমরা যদি নাম না করি আমাদের সেই গ্লোটা চেহারায় আসে না। তাই আমাদেরকে, যারা আমরা এই গ্লোটা রাখতে চাই, তাদেরকে আমাদের কন্টিনিউ নাম করে যেতে হয়। শ্যামাদি, শ্যামাদি, জয়গুরু। হ্যাঁ শ্যামাদি, তুমি কি একটা কীর্তন গেয়ে একটু ধ্বনি দেবে? আসলে ওরা বোধহয় জয়েন করতে পারছে না, আর আমি যদি ওদের কল ধরি তাহলে আমি কেটে যাব, সেই জন্য আমি ওদের কলটাও ধরতে পারছি না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। জয়গুরু, তুমি শুরু করো। জয়গুরু। गुरु संग गुरु संग लगा रे, गुरु संग लगा रे, ओ गुरु संग गुरु संग लगा रे, गुरु संग लगा अरे, गुरु बिना जीवन अधमय अधूरा, गुरु बिना जीवन अधमय अधूरा, गुरु बिना सारा ज्ञान अधूरा, गुरु बिना सारा ज्ञान अधूरा, गुरु संग प्रीति लगाने, गुरु संग प्रीति लगाने, गुरु संग लगा रे, गुरु संग लगा रे, ओ गुरु संग गुरु संग लगा गुरु संग लगा रे, गुरु संग स्नेह लगा रे, ज्ञान मिलेगा गुरु बिना जग में, 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 ज्ञान है पद पद ज्ञान बिना ज्ञान रतन चारि भैया, ज्ञान रतन चारि भैया, हलारे जीवन का पथ गुरु दिखलाते, जीवन का पथ गुरु दिखलाते, धर्म कर्म युग चलन धर्म कर्म गुरु के शरण जाए, गुरु के शरण जाए, गुरु संग लगा रे, लगा रे,
ध्यान करो गुरु बन जाओगे, ध्यान करो गुरु बन जाओगे, चूक गए तो पछताओगे, चूक गए तो पछताओगे, ध्यान करो बन जाओगे, चूक गए तो पछताओगे, जीवन का परिवार जीवन का परिवार गुरु জয় গুরু, জয় গুরু। শ্যামাদি জয় গুরু। শ্যামাদি ওই টেকনিক্যাল কারণে না কুমারী হিমিকা মা আর কুমারী দেবব্রতা মা ওরা জয়েন করতে পারছিল না, ওদের কীর্তন গাওয়ার কথা ছিল। ওরা কীর্তনটা গেয়ে নিলে তুমি ধ্বনি দাও, দিয়ে শেষ করে দাও। এবারে আমি কীর্তন পরিবেশন করার জন্য দেবব্রতা মা এবং হিমিকা মাকে কীর্তন পরিবেশন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। খুব ভালো, সব ঠিক আছে, তোমরা শুরু করো। प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, विश्वकारिणी हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षाकारी, विभव विभूति प्रेमी नारायण, विभव विभूति प्रेमी नारायण, ठाकुर प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, स्निग्ध सुशोभित आभा मंडित, स्निग्ध सुशोभित आभा मंडित, दिव्य तनु चिरा भुवन वंदित, दिव्य तनु चिरा भुवन वंदित, सर्व परिपूरणी लोक वर्धनी, सर्व परिपूरणी लोक वर्धनी, सर्व परिपूरणी लोक वर्धनी, प्रभुवर इष्ट अभिसारी, मंगल सुंदर कृष्ण सुधाकर करुणा विकलित सुभदंतर, मंगल सुंदर कृष्ण सुधाकर करुणा विकलित सुभदंतर, मंगल सुंदर कृष्ण सुधाकर करुणा विकलित सुभदंतर, धृति कृति पोषणी धृति कृति पोषणी, 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 सात्विक दीवनी आदर्श धर्माचारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, दुख वेदना शोक तापहरण, दुख वेदना शोक तापहरण, मुक्ति विधायक
सर्व परिपालने काल विनाशिनी त्रिभुवन सत्ताधारी दीन दयामय अनाथ आश्रय चरण प्रार्थना दूरित सर्व भय दीन दयामय चरण आश्रय चरण प्रार्थना दूरित सर्व भय दीन दयामय अनाथ आश्रय चरण प्रार्थना दूरित सर्व भय जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी जीवन स्वामी प्रभु प्रणमामि सद्गुरु प्राण विहारी प्रभु अवतारी 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 जय हिंद। असंख्य धन्यवाद माँ आप दोनों को। मैं कैसे आप लोगों को कृतज्ञता प्रश्न करूं और मेरी जो वाक शक्ति वही लोप हो गया। इतना सुंदर कीर्तन और मेरे को लगा था कि आप दोनों बहुत अच्छा गाओगे। थैंक यू सो मच। और अगले प्रोग्राम में भी आप लोगों को आना पड़ेगा। अभी मैं श्यामा दी को रिक्वेस्ट करती हूँ, श्यामा दी आप ध्वनि देके प्रोग्राम को खत्म कीजिए। गुरु वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम दयालु प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। दयाल प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। हमारा था जगत जननी श्री श्री बरमा की जगत जननी श्री श्री बरमा की हमारा था जननी श्री श्री बरमा की जय। परम पूज्य पात जुगाचार्य देव श्री बरदा की परम पूज्य पात जुगाचार्य देव श्री श्री बरदा की परम पूज्य पात जुगाचार्य देव श्री श्री बरदा की जय। पूज्य पात वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्य पात वर्तमान आचार्य देव दादा की जय। पूज्य पात वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूजनीय श्री बाबाई दादा की सत्संगों की जय। नाम की जय। मातृ सम्मेलन की जय। वंदे राज्य पितृन वंदे राज्य पितृन वंदे मातृवर्गन मातृवर्गन वंदे अहंकृति दैवतं वंदे अहंकृति दैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं सबको बचाना अपने बचना इसको ही तू धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते संप्रदाय को न कहते टका पराया मानुष
शक्ति भर मानुष धरना, एक आदेश में चलते जो उनसे ही समाज हो। शिक्षक को नहीं इष्ट मिटान, कौन जगाए छात्र प्राण। इष्ट नहीं हो जिस नेता को, यम दयाल ही समझो उसको। मातृ भक्ति अटूट जितनी, संतान होती कृति उतनी। पिता में श्रद्धा, माँ में टान, वह लड़का हो सम प्राण। यजन आजन इष्ट भीति, करने से काटे महाभीति। यजन जाजन इष्ट भीति, करने से काटे महाभीति। बंदे पुरुषोत्तम, बंदे पुरुषोत्तम, बंदे पुरुषोत्तम।